welcome to Prep Smart for TGT PGT. This channel provides biology content for all TET, TGT and PGT exams. This is the video series covering plant physiology chapters, and this video is concerned with the chapter photosynthesis. This is the part 1 of the series. Also, this channel provides pointers of the full syllabus and regarding questions to ace your preparation. So, we will cover photosynthesis in higher plants in this video. Let's have a brief of the photosynthesis process. It is a physiochemical process जो कि light energy को use करके synthesis of organic compounds कराती है. इसके requirements है chlorophyll, the green pigment, light, carbon dioxide, water. क्यों important है? This is important due to these two reasons. As it synthesizes the primary source of food on earth, यानी कि वो primary source देती है food का, और responsible होती है oxygen के release के लिए जो atmosphere में होता है through green plants. इन दो रीजंस की वजह से photosynthesis process is very much important. Before going to the whole process of photosynthesis, we study the experiments regarding the photosynthesis. These are the early experiments. First is Joseph Priestley के द्वारा किया गया था, जिन्होंने बताया था the essential role of air in growth of green plants. Also he discovered oxygen in 1774. Joseph Priestley ने एक experiment किया था जिसमें उन्होंने एक जार में दो ग्लास जार में एक में कैंडल विद माउस रखा था, एक में कैंडल माउस एंड मिंट प्लांट को रखा था. कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि जिस जार में कैंडल विद माउस था उसमें द माउस डाइड एंड द कैंडल एक्सटिंग्विश्ड. बट जिसमें उन्होंने मिंट रखा था, कैंडल ऑल्सो डिडंट एक्सटिंग्विश्ड, ऑल्सो माउस डिडंट डाइड. सो what happened that mouse releases CO2 and consumes oxygen. Also burning happens in the presence of oxygen only. So इसीलिए इस जार में हुआ क्या कि वो जो burning candle है वो douse हो गया and mice died. But in this jar the mice didn't die and the candle also didn't douse because the main plant present here is evolving the oxygen in the atmosphere of jar, which is being utilized by the mouse and the burning candle. So Joseph Priestley stated that plants restore to the air whatever breathing animals and burning candle remove. The burning candle and the breathing animals remove remove oxygen from the atmosphere. That is what is restored by the mint plant here in the jar. And this statement was given by Joseph Priestley. The next experiment was done by Jan Eggenshaus. उन्होंने स्टेट किया कि सनलाइट इज एसेंशियल टू प्लांट process that somehow purifies the air fouled by burning candles and breathing animals. This was just an extension to the Joseph Priestley experiment. He experimented on aquatic plants in bright sunlight that showed that small bubbles are formed around green parts while no bubbles formed in the dark. So he stated that sunlight is essential. तो उन्होंने बोला कि sunlight is essential वो प्रोसेस करने के लिए जो somehow purify करती है एयर को, और द एयर विच इज फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल्स. और उन्होंने ये भी स्टेट किया कि ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट ग्रीन प्लांट पार्ट्स ही रिलीज करती है ऑक्सीजन को. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था जूलियस वैन सैस के द्वारा 1845 में, जिन्होंने एविडेंस दिया था फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज जब प्लांट ग्रो करता है. उनके स्टडीज से ये पता चलता है कि ग्रीन सब्सटेंसेस जो कि क्लोरोफिल है वो सेल के स्पेशल बॉडीज दैट इज क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है, और ग्रीन पार्ट्स जो है प्लांट का वहीं पे ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है एंड ग्लूकोज फर्दर स्टार्च के रूप में स्टोर होता है. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था TW एंगलमैन के द्वारा. उन्होंने प्रिज्म यूज किया था फॉर स्प्लिटिंग लाइट उनके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स यानी कि विबग्योर में, और इल्यूमिनेट किया था ग्रीन एल्गे क्लैडोफोरा को, जो क्लैडोफोरा को उन्होंने प्लेस किया था विद सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक बैक्टीरियाज आर बैक्टीरियाज दैट कैन ओनली ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्यों किया था एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया था? ये देखने के लिए कि एल्गल कॉलोनी जो है क्लैडोफोरा वो ऑक्सीजन इवॉल्व करती है कि नहीं. अगर वो ऑक्सीजन इवॉल्व करेगी तो बैक्टीरिया ग्रो होगा, एरोबिक बैक्टीरिया. तो ही यूज्ड बैक्टीरिया टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन. बैक्टीरिया एक्यूमुलेट कहाँ हुआ? आफ्टर एक्सपेरिमेंट ही स्टेटेड दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुआ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम में. इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द ब्लू लाइट रेंज एंड दिस इज द रेड लाइट रेंज जहाँ पे हमारे एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ था. थ्रू हीज एक्सपेरिमेंट एक्शन स्पेक्ट्रम टर्म वाज स्टेटेड. और
This action spectrum also resembles the absorption spectrum of chlorophyll A and B, जो कि हम फर्दर पढ़ेंगे. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कॉर्नेलियस वैन नील का, जिन्होंने कंडक्ट किया था पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. इसमें उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से मिलता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट में. सो ही गेव एन इक्वेशन which states that CO2 plus 2H2A in presence of light gives CH2O plus H2O plus 2A. This CH2O is the carbohydrate. Also उन्होंने बताया कि ग्रीन प्लांट्स में वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, वेरस कुछ प्लांट्स जैसे कि नॉट प्लांट्स बैक्टीरिया पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, उनका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो होता है वो होता है सल्फर और सल्फेट, जबकि जो हाइड्रोजन डोनर होता है वो होता है H2S. तो इनके एक्सपेरिमेंट के बाद हमें मिलता है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो है 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll. The process of photosynthesis happens and the products are C6H12O6 that is glucose and 6O2 that is oxygen. और ये इक्वेशन हमारा है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का. सो आफ्टर दिस इक्वेशन हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है. लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स में होता है और ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी जहाँ की क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है वहाँ होता है. क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होती है? वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स के अलाइन, मेसोफिल सेल्स के वॉल्स में अलाइन रहती है. क्यों मेसोफिल सेल्स के वॉल में अलाइन रहती है? टू गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, प्रॉपर इंसिडेंट लाइट मिले ताकि वो लाइट को ट्रैप करके आगे को प्रोसेस कर सके, इसीलिए वो वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स में अलाइन रहती है. ये है स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसके बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. क्लोरोप्लास्ट हैज इट्स ओन डीएनए. स्टार्च ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट. These stacked membrane-like structures is called granum or grana. This is the lamellae portion, and stacked one coin-like structure is called thylakoid. Ribosomes are also present for the synthesis of their own protein. The blank fluid-like structure is called stroma. Drop of lipids are also there. The main photosynthesis happens in thylakoid and stromal region. देखेंगे कौन सा फोटोसिंथेसिस का स्टेप थाइलाकॉइड में होता है, स्ट्रोमा में होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि विच पोर्शन डज व्हाट रिएक्शंस और डज व्हाट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. which portion of chloroplast does what, that is called division of labor. The membrane system यानी कि the thylakoid portion traps light and synthesize ATP and NADPH. This process as it require light for the synthesis of ATP and NADPH, the process is termed as light reaction. Next is the stromal region, जिसमें बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होता है जो कि CO2 को फिक्स करता है एंड फॉर्म करता है सुगर्स. बाद में वो स्टार्च बनती है और दिस प्रोसेस डजंट डिपेंड्स ऑन लाइट, इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन नाम देते हैं. जबकि ये डिपेंड करती है प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन पे, यानी कि ATP और NADPH इसे जरूरत है, बट इट डजंट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लाइट, दस इट इज नेम्ड एज डार्क रिएक्शन. यहाँ देख सकते हैं द डार्क रिएक्शन ऑल्सो नोन एज केल्विन साइकिल. इट फॉर्म्स शुगर एंड थाइलाकॉइड में होता है हमारा लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में होता है हमारा डार्क रिएक्शन. नाउ हम देखेंगे कि पिगमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में. ठीक है, हमें पता है ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, बट अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल देयर आर मेनी सच पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लीफ स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो उन सबको सेपरेट करने का एक टेक्निक है दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम लीफ के पिगमेंट्स को आसानी से सेपरेट करके देख सकते हैं एक लीफ में कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है. पिगमेंट्स क्या होता है? पिगमेंट्स आर द सब्सटेंस हैविंग एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ. There are majorly 4 types of pigments present. Those are chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophylls and carotenoids. The major pigment or the chief pigment associated with photosynthesis is chlorophyll A, that makes the reaction center. Further we will discuss. The color is bright blue-green. Chlorophyll B is the color yellow-green. Xanthophylls has color of yellow and carotenoids में yellow-orange. Accessory pigments. These three, apart from chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophylls and carotenoids are termed as accessory pigments.
क्या करती है, वो भी लाइट को एब्जॉर्ब करती है बट ट्रांसफर कर देती है क्लोरोफिल ए को, एंड ऑल्सो ये प्रोटेक्ट करती है क्लोरोफिल ए को फ्रॉम गेटिंग फोटो ऑक्सीडाइज्ड। ये 3 ग्राफ हमें एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बताता है। दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड, जिसमें हमें दिख रहा है कि क्लोरोफिल ए ऑलमोस्ट 400 to 500 के बीच में, सॉरी 300 to 400 के बीच में एक पीक देती है, एंड 700 के पास एक पीक देती है, जिसका हमने पहले डिस्कस किया था, ब्लू एंड रेड लाइट रीजन में वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन दिखाती है। और ये है एक्शन स्पेक्ट्रा। पता चल रहा है कि सेम ब्लू एंड रेड लाइट रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है, और इन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है ये एक्शन प्लस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए, जिससे हम गेस कर पा रहे हैं कि जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा। वीडियो, डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। अगर आपको पूरा चैप्टर देखना है तो आई विल लिंक द प्लेलिस्ट। इट विल बी comprised of 4 parts, and do watch the whole playlist for to complete the full chapter.